to all the dear students, welcome back to your online classes sessions of English grammar. So dear student, as you know that I, Soumya ma'am, is taking up here your English grammar lesson. So likewise, as we do in all the sessions, first of all we will have a quick recap of the topics that we have covered till now. This recap portion we do so that you can revise what have you learned till now, what you have understand till now in all the online session of the series, and try to recall what we have studied till now one by one. So first of all, dear student, we studied about the topic of tenses. That we studied about the meaning of tenses. What was the meaning of the tenses? Yes, tenses indicate the time of action or an event. Then we quickly moved towards the form of tenses. We studied that there were 12 forms of tenses. Till now we have already covered about simple tenses, that was of past, present and future. Then same way we covered the continuous tenses, present, past and future. Then we covered the perfect tenses, similarly of past tenses, present tenses as well as future tenses. Total till now we have covered 9 forms of tenses, and in today's lecture we are going to study about the perfect continuous tenses of past, present as well as future. So dear student, as you can see here on the screen that it is written perfect progressive tense. So you might be wondering what is this progressive tenses. तो मैं आप लोगों का ये डाउट अभी इसी वक्त क्लियर कर देती हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है. तो अगर कहीं पे सिर्फ प्रोग्रेसिव टेंस लिखा है तो आप समझ जाइएगा वो कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा है मतलब कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है. ठीक है, जैसा कि आपका घर में नाम होता होगा ना, कोई निक नेम होता होगा, ऐसे ही कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है, ऑफिशियल नेम होता है प्रोग्रेसिव. तो कहीं पे भी अगर आप प्रोग्रेसिव देख रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा. अगर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा है मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, और सिर्फ प्रोग्रेसिव टेंस लिखा है तो मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है. सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद द टॉपिक. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस क्विकली come over our detailing of this topic along with structure and example. And as I always tell you, so please sit relaxingly, open your mind and eyes and grasp this audio visual classes. Now let's see perfect continuous tenses. First of all we will see प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करके देखेंगे. तो पहले समझ लेते हैं कि ये हमें किस एक्शन के बारे में डिनोट करता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Present perfect continuous tense indicate an action that started in the past and are still going on in the present. Present perfect continuous tense tell us about an action that started in the past and are still going on in present. मतलब कि present perfect continuous tense हमें उस action के बारे में बताता है जो start तो past में हुआ था पर अभी भी वो चल रहा है. ठीक है, continuous process में है. तो आप देख सकते हैं past में start हुआ था तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, perfect यूज़ किया, और क्योंकि अभी भी चल रहा है इसलिए continuous यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ पर अभी भी चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्ट्रेस देना ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट में. मतलब कि कोई काम है, कोई इंसिडेंट है, कोई इवेंट है, वो कितनी देर तक चला, इस पे ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो मेनली फोकस करता है. और ड्यूरेशन या फिर टाइम ऑफ इवेंट जानने के लिए ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. अब जल्दी से हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऑफ सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years. ठीक है, तो यहाँ 5 years यूज़ हो रहा है ना, कितने साल से फुटबॉल खेल रहे हैं, 5 years से फुटबॉल खेल रहे हैं. तो यू कैन क्लियरली सी डियर स्टूडेंट कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बता रहा है, हमें ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट बता रहा है कि कितने समय तक एक काम चला. ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, फिर हैव बीन, क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा क्या यूज़ होता है, हैज़ और हैव यूज़ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आई है तो हैव यूज़ होगा. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आई है, दे है, वी है तो हैव यूज़ होता है. और अगर ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नाउन्स है तो हैज़ यूज़ होता है.
बीन तो 100% यूज़ होगा ही, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट टेंस में वर्ब का ईडी फॉर्म यूज़ होता है और हैज़ और हैव यूज़ होता है। कंटिन्यूस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा ही होगा। परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव यूज़ होगा ही होगा। अब एक और बात जान लीजिए, क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूस जहाँ पे भी साथ में आते हैं वहाँ पे एक और वर्ड निकल के आ जाता है, उसका नाम होता है बीन। ठीक है, परफेक्ट है तो हैव यूज़ होगा, कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा, और जहाँ दोनों साथ में आएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा निकल के, कूद के बीन आ जाएगा। ओके, तो ये रखिएगा जहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखा है वहाँ एक तो हैव और हैड का फॉर्म आएगा। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड आ जाएगा, और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और तो हैव और हैज़ आएगा, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल हैव और विल हैज़, या फिर शाल हैव और शाल हैज़ आ जाएगा। अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे फोकस कीजिए। ठीक है, जहाँ परफेक्ट है वहाँ पे एच वाला वर्ड आएगा, हैज़ हैव हैड आएगा। जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, और जब दोनों मिलेंगे तो बीच में बीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हैव बीन यहाँ पे हो गया, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल सिंस 5 years। ठीक है, तो ये पूरा एक सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि पास्ट में एक काम स्टार्ट हुआ है पर अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। मतलब कि मैं 5 साल से खेल रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं खेलता ही हूँ ना, पास्ट में भी खेलता था, 5 साल भी खेल रहा था और अब भी मैं खेल रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे मेन स्ट्रेस किस पे है, ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट में, कि कितने टाइम पीरियड के लिए एक इवेंट चला। हम टाइमलाइन पे देख लेते हैं। इसमें एक इवेंट स्टार्ट हुआ जो कि प्लेइंग था और वो अभी तक प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे ड्यूरेशन पे ही फोकस हो रहा है कि कितने टाइम तक, किस टाइम तक इवेंट चला। ड्यूरेशन मीन्स टाइम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड इन दिस लेसन वी विल सी अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows about an action which began in the past at certain time and still going on until some other action occurred। मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि एक इवेंट था, एक एक्शन था जो पास्ट में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं तक आने ही वाला था, पर जस्ट उसे दूसरे एक्शन ने रोक दिया। ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ, फ्यूचर में वो इवेंट आने ही वाला था पर उसको किसी और एक्शन ने तब तक रोक दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम मेन इंपॉर्टेंट किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कि कब वो इवेंट स्टार्ट हुआ है। तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस पे फोकस रहेगा, मेन इवेंट पे फोकस रहेगा कि कब वो इवेंट स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है, यू कैन गेस। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैव नहीं आ सकता। परफेक्ट की बात हो रही है तो हमें पता है एच वर्ड आता ही आता है, हैज़ हैव कुछ ना कुछ तो आता ही आता है, राइट। और पास्ट है तो क्या आएगा, हैव आएगा नहीं, हैज़ आएगा नहीं, क्या आएगा, हैड आएगा। वेरी गुड। परफेक्ट कंटिन्यूअस जब साथ आते हैं तो बीच में क्या कूद के निकल आता है, बीन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आई पहले हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लस हमारा हो गया हैड, और उसके बाद बीच में क्या आ गया, बीन आ गया। और कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा फिर, यस, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, यही आएगा ना। सो वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट यू ऑल आर लर्निंग सो वेल अबाउट द टेंसेस विथ मी। नाउ लेट अस क्विकली सी कि क्या यही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने डिस्कस किया। इधर स्ट्रक्चर, यस, सब्जेक्ट बिल्कुल वैसे ही जो हमने डिस्कस किया था, फिर हैड, फिर बीन प्लस वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour बिफोर यू अराइव्ड, है ना। यही तो हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो एच वर्ड आएगा, परफेक्ट में एच वर्ड आता है, और पास्ट परफेक्ट है यानी कौन सा एच वर्ड आएगा, हैड वाला एच वर्ड आएगा। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ साथ में आते हैं तो बीच में क्या पॉपअप कर जाता है, बीन, और उसके बाद कंटिन्यूअस है तो वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन,
हैड हमारा पास्ट परफेक्ट है इसलिए बीन पॉपअप हो जाएगा। प्लेइंग हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल फॉर 1 आवर बिफोर यू अराइव्ड। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या दिखाता है, तो हमें वो एक्शन के बारे में दिखाता है कि वो पास्ट से चलना शुरू हुआ, प्रेजेंट में वो पहुंच जाता पर उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, तो पास्ट से स्टार्ट हुआ, 1 घंटे पहले से मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, राइट और अभी वो कंटिन्यू होता ही रहता पर अचानक से तुम आ गए इसलिए वो एक्शन बीच में ही रुक गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो प्रेजेंट आने तक रुक गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या यूज़ हो रहा है, मेन कंसंट्रेशन किस पे है कि टाइम जब इवेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब इवेंट स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे पहले। यहाँ पे हम फोकस करके बता रहे हैं ना, 1 घंटे पहले जो पास्ट था हमारा, 1 घंटे पहले जो हमारा बीत चुका है उसमें ये इवेंट स्टार्ट हुआ था। तो एज यू कैन सी हियर इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आवर मेन फोकस इज ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द इवेंट। लेट्स सी इट ऑन आवर फेवरेट टाइमलाइन। एक इवेंट है जो पास्ट में चला और पास्ट में ही प्रेजेंट आने से पहले, जस्ट पहले प्रेजेंट आने से पहले वो ख़त्म हो गया क्योंकि उस बीच दूसरा इवेंट ऑर्गर हो गया कि तुम अराइव हो गए। और इसमें भी ड्यूरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट अस क्विकली सी अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। It denotes an action which will begin and still going on until a point in future। मतलब कि हमें बता रहा है कि एक एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कुछ समय तक वो चलता रहेगा फ्यूचर में। यहाँ पे मेन स्ट्रेस किस पे है, यहाँ पे भी मेन स्ट्रेस किस पे है, ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट पे, कि मतलब एक एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कितनी देर तक वो फ्यूचर में चलेगा, इसी पे हमारे स्ट्रेस है। मतलब आप कुल मिला के ये जान सकते हैं कि जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट पे ही होता है। अब इसका स्ट्रक्चर एस प्लस विल हैव या विल हैज़ या फिर शाल हैव या फिर शाल हैज़ और उसके बाद कंटिन्यूअस होने और परफेक्ट साथ में आ रहे हैं तो बीन आ जाएगा प्लस का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। When I turn 30, I will have been playing football for 20 years। जब मैं फ्यूचर में 30 साल का हो जाऊंगा तो मैं फुटबॉल खेलता रहूँगा कितने सालों तक, 20 साल मेरे पूरे हो जाएंगे फुटबॉल खेलते हुए, राइट। सब्जेक्ट यहाँ पे है When I turn 30, I, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। Will have been, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए विल आया है। आई यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए हैव आया है, क्योंकि हमें पता है हम आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं, यस हैव यूज़ करते हैं। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आई है तो इसलिए हैव, फिर कंटिन्यूअस और परफेक्ट साथ आ रहे हैं तो बीन आ जाएगा। कंटिन्यूअस आ रहा है इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल फॉर 20 ईयर्स, राइट। सो यहाँ पे भी हमारा मेन कंसंट्रेशन किस पे है, ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट पे है। ठीक है, जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा तब मैं फुटबॉल खेलते हुए मुझे कितने साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा यही लाइन इम्पोर्टेंट है कि मुझे फुटबॉल खेलते हुए 20 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट ही बता रहे हैं, राइट। और ये हमारी फ्यूचर की बात है, मैं अभी 30 साल का नहीं हुआ हूँ, फ्यूचर में जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा तब मुझे फुटबॉल खेलते हुए 20 साल हो जाएंगे। अभी नहीं हुए हैं 20 साल, फ्यूचर में होंगे। तो हम देख सकते हैं एन एक्शन विच विल बिगन एंड विल गोइंग अंटिल अ पॉइंट इन फ्यूचर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू आवर फेवरेट टाइमलाइन, लेट्स सी इट। एन एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट हो रहा है, प्लेइंग कुछ समय तक फ्यूचर में चल रहा है। ठीक है, जब तक कि आप 30 साल के नहीं हो जाते। तो एक एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कुछ समय तक चलेगा। अभी हमारा मेन स्ट्रेस किस पे है, यस हमारा मेन स्ट्रेस है ड्यूरेशन पे ही। एक इवेंट जो ड्यूरेशन में कैलकुलेट हो रहा है कि मतलब मैं 20 साल तक तब तक फुटबॉल खेल चुका हूँगा।
Student, this was all about your perfect continuous tenses. तो आपको पता चली गया कि जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हो तो हमारी बात जो है वो ड्यूरेशन की ही बात हो रही है, मतलब कि कितने टाइम पीरियड तक एक इवेंट चला या हुआ. सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. So dear student, without making lecture long, we end up our lecture here, and in next class we will discuss about negative interrogative and negative interrogative sentences making in perfect continuous tense. Along with an important note, likewise we discuss in all our lectures of tenses. With this only, I would like to urge you all to keep watching your online lectures and keep learning. Don't forget to mark your attendance. We will meet up in next lecture with the upcoming part of this lecture. Stay home. Jai Hind.